મગરીબ લગભગ થવા થઈ છે અને આપણે હમણાં જાય છે નમાઝમાં હરમમાં ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા. અને આજે જુલુસ બી હશે અને કાલે વફાતની રાત પણ છે, દિવસ પણ છે ઇન્શાઅલ્લાહ. આજે રાતના ઇમામ હસન મુજતબા અલૈહિસ્સલાતુ વસલામની શહાદત અને રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની શહાદત મનાવશું. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જુલુસની અવાજ આવે છે અને જુલુસ એકદમ રોનક છે અહીંયા, મતલબ રિકત છે. ગમ આજે રાતને છે એટલે માણસો જુલુસમાં જાય છે. વધતું જાય છે, ભીડ વધતી જાય છે એટલે આપણે જલ્દી પહોંચી જાય, નહીં તો જગા મળવું મહેનત પડી જશે. ટીવીના જોનારો મુજતબા અહીંયા મશહદ મુक़દ્દસથી આપ સર્વેને સલામ અલૈકુમ કહું છું. ઇન્શાઅલ્લાહ અમે બધાય સાથે જાય છે નિશાપુર તરફ. આપણે બધાય અમારા મૌજૂદ છે. આગા સાહેબ પણ મારી સામે છે, આજે એ પોતે રેકોર્ડિંગ કરે છે માશાઅલ્લાહ. અને ત્યાં નિશાપુરની દાસ્તાન, નિશાપુરની હિસ્ટ્રી આગા સાહેબ અમારી દરમિયાનમાં છે. જરૂર આગા સાહેબ ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા આપણે એ બયાન કરતા રહેશે. અને આગા સાહેબ હિસ્ટ્રીમાં માશાઅલ્લાહ બહુ એક્સપર્ટ છે અને જાણે છે. એક એક हिस्ट्री आपने बयान करता रहते हैं. तो तमें पर मैंने दुआओं में याद रखो इंशाअल्लाह. हमें पता आपसे एक सवाल ये है कि आपको मशहद में कैसा लगा? हाँ, मैंने आगा सवाल करे छे
કે મને મશહદમાં કેવું લાગ્યું. તમે યકીન માનો કે જ્યારે હું અહીંયા પહોંચ્યો મારી તબિયત એકદમ સારી થઈ ગઈ માશાઅલ્લાહ. અહીંયાની પાણી, અહીંયાની આબોહવા મને એકદમ ગમ્યું, મને રાસ આવ્યું માશાઅલ્લાહ. અહીંયાની રોનક, અહીંયાની માતમદારી એકદમ સારી છે. અને સાથે સાથે આગા પોતે પણ ઝિયારત એવી ફાઇન રીતે કરાવ્યા માશાઅલ્લાહ. એક વસ્તુ આપણે જાણકારી મળી, જે ઇન્ફોર્મેશન મારા પાસે નહોતા, મને ખબર નહોતી, આગા સાહેબની મારિફતથી, ઇલ્મથી આપણે ઘણું જાણવાનું મળ્યું. જઝાકલ્લાહ.
محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعجل فرج واحرق اعداءهم شنا معهم મારા વહાલા ખોજા ટીવીના જોનારાઓ અત્યારે અમે નિશાપુર તરફ જાય છે ઇન્શાઅલ્લાહ આ આપણી બસ છે હમણાં આપણે બસમાં રવાના થાય છે મોમિનીન અને મોમિનાત અહીંયા મોજૂદ છે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે બધાએ સાથે મળીને નિશાપુર તરફ آپ ادھر آ جائیے یہاں بیٹھے مولانا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مولانا ابھی ہم جیسا کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہم نیشابور کی طرف روانہ ہو رہے ہیں ذرا تھوڑی بہت کچھ آپ بتا دیں کہ ہم ابھی کہاں ہم کہاں لوگ جا رہے ہیں انشاءاللہ یہاں سے نیشاپور کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. سب سے پہلے مشہد سے تقریباً 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر کی دوری پر ہے خواجہ عباس سال 8ویں امام کے صحابی. انشاءاللہ پہلے وہاں چلیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ وہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر دور نیشاپور ہے. شہر تاریخی ہے, علماء کا شہر ہے. سنیوں کے جتنے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں, صحیح مسلم اور یہ سب کے لکھنے والے, یہ سب وہیں نیشاپور سے گزرے ہیں. اور وہاں پہ مولا کے صحابی بھی کئی ہیں. اور اس جگہ پر انشاءاللہ سب سے پہلے ہم لوگ زیارت کے لیے وہاں بی بی شتیتا ہیں 7ویں امام کی کنیز خاص, جنہوں نے مولا کو کبھی دیکھا نہیں تھا. انشاءاللہ ان کے بارے میں بیان کیا جائے گا. پھر انشاءاللہ امامزادے ابراہیم اور محروق, ایک چوتھے امام کے پوتے اور ایک 7ویں امام کے بیٹے ہیں وہاں پر. انشاءاللہ کی یہ زیارتیں کرتے ہوئے وہاں سے اور پھر انشاءاللہ یہاں مشہد کی طرف ہماری واپسی ہوگی. تقریباً لگ بھگ وہاں سے آتے ہوئے شام ہو جائے گی. یہ زیارتیں انشاءاللہ جو اس جگہ پر کمپلیٹ ہوں. بہت بہت شکریہ مولانا, تھینک یو. ہر موقع پر اپنی دیگر نشوار سے نماز انشاءاللہ اونجا ہستین قدم کا ارے مشکل نہیں اس نماز محمد علی محمد صلوات. بہرحال جیسا کہ خود مولا امام رضا علیہ السلام کے لیے ہے کہ جس وقت امام رضا علیہ السلام یہاں آئے اس سے پہلے رسول نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی. پورا مشہد ادھر نظر آ رہا ہے, دیکھیے مولا کا روضہ سامنے نظر آ رہا ہے, وہ سامنے مولا کا روضہ, مولا امام رضا کا بیچ میں دو وہ نظر آ رہی ہیں اوپر اور مینار. کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ سرزمین خراسان پر دو پہاڑوں کے درمیان جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوگا جس میں میرے جسم کا ٹکڑا دفن کیا جائے گا, اور جو شخص بھی میرے اس جسم کے ٹکڑے کی زیارت کرے گا میں رسول ضمانت لیتا ہوں کہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. یہ رسول خدا کا وعدہ ہے, ہمارا اور آپ کا وعدہ نہیں کہ آج کیا ہو کل بھول گئے. رسول نے وعدہ کر لیا تو کر لیا. بلکہ حدیث دوسری حدیث مولا رضا کے لیے کہ منظارنی عارفن بحقی انا ازورکا ثلاثت مقامن. مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی میرے حق کو سمجھتے ہوئے میری زیارت کرے, میری معرفت رکھتے ہوئے, میں رضا وعدہ کرتا ہوں
कि 3 जगह पर मैं उसकी आकर मदद करूंगा। अव्वलहु फिल क़ब्र, पहली जगह कब्र में, दूसरी फिल सिरात, सिरात पर, तीसरी यौमुल हिसाब, क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा उस वक्त मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। मौला फरमाते हैं अगर दिन में कोई मेरी 1000 मरतबा मेरे पास आएगा तो मैं 1000 मरतबा उसकी कब्र में आकर गिनाऊंगा कि ये देखो पहली मरतबा आया, ये दूसरी मरतबा आया, ये तीसरी मरतबा आया। मौला बहरहाल मासूम का वादा है, वादा वो अपना पूरा करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे अगर उनका वादा है। बहरहाल अगर कब्र में आ जाए तो ये है कि घबराने की ज़रूरत क्या, जब मासूम वहाँ पर मौजूद हो। परसों इंशाल्लाह मौला रज़ा की शहादत का दिन है। खुशकिस्मत है हमारा आप, ये दिन हम लोग को इस जगह पर देखना नसीब हुआ है। और जैसा कि कल की शब है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की शब है, नौगान से एक ताबूत निकलता है औरतों का, कि काफ़ी हज़ारों की तादाद में लेडीज़ होती हैं खाली वहाँ, कि वहाँ से ताबूत उठाती हैं और उठाकर मौला रज़ा के हरम में लेके आती है। इसलिए मौला रज़ा की जब शहादत हुई है मर्दों को इजाज़त नहीं थी कि मौला रज़ा का जनाजा उठाया जा सके, मख्फी किया गया था, छुपाया गया था। तो यह है कि उस वक्त औरतों ने जब जनाजा उठाया है तो मर्दों को भी गैरत आई और मर्द भी वहाँ पर फिर पहुँच जाते हैं। इस हदीस रसूल के मुताबिक हारून रशीद को जब पता चला कि रसूल खुदा कह के गए हैं कि जन्नत का टुकड़ा है और वहाँ पे मेरा फर्जंद दफन होगा, तो हारून रशीद का पहले इंतकाल हो गया था। हारून रशीद का पहले इंतकाल हुआ, उसने वसीयत की अपने बेटे से मामून रशीद से कि मुझको जो है उसी जगह पर दफन किया जाए जहाँ पर ये रसूल की हदीस है। बहरहाल जब उसका इंतकाल हुआ तो उसको वहाँ पर दफन कर दिया गया। अब यह था कि इमाम रज़ा ने जो कल का, आज का दिन, बल्कि आज का दिन है, आज मामून रशीद ने जो है मौला रज़ा को बुलाया और मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार किया, लेकिन इजबारन महल में बुलाया गया। और मौला जिस वक्त हुजरे में जाते हैं, कमरे में जाते हैं, तो पहुंचते हैं तो मौला ने जाने से पहले अबू असल से कहा अपने साहबी से, देखो ये अबू असल, मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर मैं अंदर से बाहर जब निकल के आऊँ, अगर मेरी रिदा मेरे कांधे पर पड़ी हो तो मुझसे बात करना, और अगर मेरी रिदा मेरे कांधे नहीं मेरे सर पे हो तो ये समझ लेना तेरे इमाम को जहर दे दिया गया। मिलता है रवायात में कि मौला पहुँचे, जिस वक्त देखा कि मामून रशीद वहाँ तख्त पर बैठा हुआ है, मौला पहुँचे, बातचीत हुई सामने, जैसा कि रवायात है अनार, अंगूर, खजूर और अनार का शरबत सामने रखा हुआ है मौला के। मौला से खाने के लिए कहा, मौला ने इनकार किया कि मैं नहीं खाऊंगा। फिर कहा, फिर मौला ने इनकार किया, इजबार बढ़ा, फिर कहा, मौला ने इनकार किया। एक मरतबा शमशीरें बाहर निकली। मामून कहता है कि अगर आपने न खाया तो मैं वही करूंगा जो मेरे बाप ने आपके बाप के साथ किया था। मिलता है कि मेरा मौला मजबूर हो जाता है, चंद दाने उठाए, जबान पर जुमला इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। चंद दाने खाए, एक घूंट शरबत का पिया। मौला से कहता है कि और खाइए। मौला कहते हैं, मामून तो अपने मकसद में कामयाब हो गया, तो अपने मकसद में कामयाब हो गया, तो जो चाहता था अपने मकसद में कामयाब हो गया। मिलता है कि मौला यानी आपका कमरा और मामून के कमरे में ज़्यादा फासला नहीं था, कुछ ही फासला था, शायद 100 कदम की दूरी होगी। मिलता है मौला जब कमरे से बाहर निकले, अबू असल देख रहे हैं कि मौला दीवार का सहारा लेकर चले आ रहे हैं, दीवार का सहारा ले लेकर बढ़ रहे हैं। कहीं पर मौला गिरते हैं, कभी संभलते हैं, कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं, पैर लड़खड़ा रहे थे। अबू असल देख रहे हैं कि मौला का इतनी जल्दी चेहरा जर्द हो चुका है, रिदा सर पे पड़ी हुई है। अबू असल तो मिलता है कि सर, ये सामने देखे लोग पैदल मौला की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की। ये काफ़ी दूर दूर से लोग, नेशापुर, कदमगाह, सब्जवार, सब ये लोग देखे चले आ रहे हैं, ये सब मौला की ज़ियारत के लिए। और रास्ते में और इंशाल्लाह भी सब दिखाई देंगे, इसलिए परसों तक सबको पहुंचना है जो ज़ियारत के लिए इंशाल्लाह आ रहे हैं। बहरहाल मिलता है कि अबू असल ने अपना सीना पीटना शुरू कर दिया, कहते हाय मेरा मौला को भी जहर दे दिया गया। मिलता है मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब हुजरे में आते हैं, कमरे में आते हैं, अबू असल को बुलाते हैं, अबू असल मेरे पास आओ। अबू असल आए, कहा अबू असल मैं तुम्हें कुछ वसीयतें करना चाहता हूँ, कुछ पैगामात हैं जो मेरे तुम पहुँचा देना। ये अबू असल तुम खुशकिस्मत हो कि मेरे फर्जंद जवाद की ज़ियारत करोगे। मिलता है कि यानी इमाम को गरीबुल गुरबा क्यों कहा जाता है? इमाम इसलिए आपके जो फर्जंद की विलादत हुई थी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की, बहुत लेट हुई। लोग नाउम्मीद हो चुके थे कि अब इसके बाद शायद इमामत ख़त्म हो जाएगी।
इमाम जवाद की जो इमाम मोहम्मद तकी को विलादत हुई बहुत लेट, और मिलता है कि बहुत कम सिन था मेरा मौला जब इमाम रज़ा की शहादत हुई है, और मौला नज़दीक भी न थे, मदीने में थे, यानी तड़प रहे थे इमाम रज़ा अपने फर्जंद को देखने के लिए। काफ़ी अरसा गुजर चुका था वे यहाँ पर तड़प रहे थे मौला। एक ही बेटा था कि उसको देखने के लिए मेरा आका तड़प रहा था। वाकई नहीं कोई जो बाप है वो ये इस दर्द को समझ सकते हैं कि औलाद की मोहब्बत, यानी जब तक इंसान साहिब औलाद नहीं होता है तब तक औलाद का दर्द नहीं होता। कि जैसा कि मौला इमाम हुसैन इस्लाम ने अजीब नफ्सियाती जुमला कहा था जनाब अली अकबर से, कि जब जनाब अली अकबर जाने लगे थे तो कहा मेरे लाल जरा घोड़े से उतर जा। कहा बाबा आप तो रुखसत कर चुके हैं। कहा मेरे लाल एक मरतबा तो घोड़े से उतर जाओ। कहते हैं बेटा काश कि तू साहिब औलाद होता, काश कि साहिब औलाद होता तो औलाद के दर्द को तू समझता कि क्या होता है। तू नहीं जानता कि मैं इस वक्त तुझे किस दिल से मैं तुझे रुखसत कर रहा हूँ, कैसे मैं तुझे रुखसत कर रहा हूँ। वही जुमला मौला रज़ा ने कहा। मौला रज़ा ने कहा कि हाय मेरा जवाद, हाय मेरा जवाद। मौला आवाज़ देते रहे। इमाम यहाँ पर मौजूद न थे, मदीने में काफ़ी दूरी। मौला ने वसीयत की ख्वाजा अबासल से, ए अबासल देखो मुझे जहर दिया गया है, मैं अपनी मौत से तभी नहीं मर रहा हूँ, मुझे जहर दिया गया है और ये कोशिश की जाएगी कि मेरी मौत को जो है छिपाया जाए, मेरी शहादत को छिपाया जाए। लेकिन मैं तुमसे बता रहा हूँ कि मेरी शहादत है, मुझे जहर दिया गया। देखो मेरी शहादत के बाद मेरे जनाजे को दफन करने के लिए जब लेकर जाएंगे ये लोग, तो यह है कि कोशिश करेंगे कि हारून रशीद के पैर की तरफ मेरी कब्र खोदी जाए। जितना भी जमीन पर बेलचा मारा जाएगा आग निकलेगी, चिंगारियां निकलेगी, जमीन नहीं खुदेगी। असलन मौला फरमाते हैं कि इसके तुम उस वक्त मामून से कहना कि तू जो ये कर रहा है गलत है, तू चाहे तो यहाँ पर इमाम को दफन करना। इमाम की शहादत हुई, इमाम ने मुझे वसीयतें की हैं और तुम इस जगह पे नहीं बल्कि अपने बाप के सर की तरफ दफन करो तो दफन होंगे तुम। ये मौलाना फरमाए कि एक बेलचा जमीन पर जैसे ही पड़ेगा जमीन अंदर बैठ जाएगी, जैसे ही बेलचा पड़ेगा जमीन अंदर बैठ जाएगी और उसके बाद पूरी कब्र सामने खुदी खुदाई तुम्हें नजर आएगी। एक बार की देखते देखते कब्र के अंदर पानी भर जाएगा और देखते ही देखते उस जगह पर छोटी छोटी लाल मछलियां आ जाएंगी। देखते ही देखते एक बहुत बड़ी सी मछली आएगी जो तमाम छोटी मछलियों को खा जाएगी। जैसे ही ये मछली को खाएगी मछली एक बारगी गायब हो जाएगी, पानी जिस उस कब्र के अंदर सारा जज्ब हो जाएगा। नीचे से एक तख्ती मेरे नाम की निकल कर आएगी तो मुझे उस कब्र के अंदर दफन कर देना। ऐसे ही हुआ जो मौला ने वसीयत की थी। मौला आखिरी दिन था परसों जो शहादत का मौला का दिन है। मौला कहते हैं अबासल से, अबासल प्यास से कलेजा मेरा फटा जा रहा है अबासल। इसलिए जिसको जहर दिया था, जहर का सबसे बड़ा असर ये होता है कि प्यास बहुत लगती है। इमाम हसन मुश्तबा आज उनकी शहादत का दिन मिलता है कि मौला को भी प्यास से कलेजा फट रहा था। मौला ने कहा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। कहा से आप लाए गए। अभी तक जैसे ही मेरे मौला ने मुंह के पास लगाया इमाम हसन ने, अरे जिगर के टुकड़े निकल कर सामने आने लगे। एक मरतबा मौला को पता चला कि बीबी ज़ैनब आ रही है। अपनी खादमा से कहते जल्दी छुपा दो इन टुकड़ों को, कहीं मेरी बहन की नजर इस पे न पड़ जाए। खुदा सलामत रखे आपकी बहनों को, खुदा सलामत। अरे बहनें परेशान हो जाती है अगर भाई पर जरा बराबर भी मुसीबत पड़ जाए। अरे बहनें हमेशा भाई के हक पे दुआ किया करती है। मिलता है मौला ने कहा इसको जल्दी से हटा दो मेरे सामने से, कहीं मेरी बहन की निगाह इसके ऊपर न पड़ जाए। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अंदर आती, कहती है भैया तेरे चेहरे का हाल क्या हो रहा है, ये तेरे चेहरे पे खून के निशा कैसे। कहते मेरी बहन कुछ नहीं। बीबी ज़ैनब की निगाह पड़ गई कांसे पर, क्या देखती है कि जिगर के टुकड़े सामने रखे हुए हैं। ज़ैनब परेशान हो गई, ज़ैनब परेशान हो गई। कहती है मेरे भैया ये क्या है, ये मेरे भैया ये क्या है। मौला ने छुपाया मगर पानी मेरा आका न पी सका। इमाम हसन भी जय मरतबा पानी लाया गया, मुंह से खून निकल कर टपक जाता था पानी के अंदर। कहते थे शायद यही रजा है मेरे परवरदिगार की कि मैं भी प्यासा ही जाऊं, क्योंकि मेरा भैया हुसैन भी प्यासा ही जाएगा, क्योंकि मेरा भैया हुसैन उसको भी 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा। मिलता है कि मौला रजा को भी प्यास, निहायत प्यास का गलबा आपके ऊपर था, बहुत प्यास लगी थी। कहते ये अब्बा संत जाओ जाकर मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। अब्बा संत गए, मौला बिस्तर पे लेटे हुए थे। अब्बा संत जब पलट के आए क्या देखते हैं, मौला जमीन के ऊपर लेटे हुए जैसे कि मछली तड़पती हो
मौला तड़प रहे थे। एक मरतबा बस अपने हाथों को जोड़ लिए, ये मेरे आका, ये मेरे मौला, आप जमीन पर क्यों आ गए? कहते हैं अब असल तो मैं चाहता हूँ आखिरी वक्त मेरा दम मेरे जद हुसैन की तरह निकले, मेरा दम मेरे जद। हाथों को जोड़ लेंगे, ये मेरे मौला रजा, ये मेरे मौला रजा, माना कि आपने वही तसव्वुर किया। ए मौला, आपकी जमीन सर्द थी, मौला साया था आपके ऊपर, आपके जद हुसैन ला यौमक यौमुन या अबा अब्दुल्लाह। ए मेरे मौला रजा, आपके जद हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे करबला के जलते हुए बन में तड़पते रहे। हाँ, जैसा कि रवायात है कि मौला की वो कही हुई चीज के मुताबिक ये हुआ, मौला इमाम रजा अलैहिस्सलाम को उस जगह पर यह जनाजा नहीं उठाया जाता, तो नौगान की औरतें आती हैं और आने के बाद मौला के जनाजे को उठाने की कोशिश की गई कि यह मर्दों को भी गैरत हुई। और सनाबाद से कुछ लोग आए, 2 जगह सबसे पुरानी थी यहाँ, नौगान और सनाबाद की, वहाँ के लोग आते हैं। और आने के बाद मौला इमाम रज़ा के जनाजे को दफनाने की तैयारी की जाती है। मिलता है कि जिस वक्त मौला रज़ा को गुस्ल देने की तैयारी होने लगी, अब असल अंदर बैठे थे, क्या देखते हैं कि एक बार की देखा कि एक अंदर एक छोटे से साहिबजादे दाखिल हुए। इतना नूर था कि चेहरा देख न सके। कहते हैं साहिबजादे दरवाज़ा बंद है, आप अंदर कैसे आए? एक मरतबा मौला हमारे को इरशाद फरमाते हैं, ए अबा सल्त, जिस तरह से मैं मदीने से यहाँ पहुँच आया हूँ, ए अबा सल्त, उसी तरीके से हम बंद दरवाजे से भी अंदर आ सकते हैं। कि मिलता है कि एक मरतबा मौला को सलाम करते हैं, ए मेरे आका, आपको मेरा सलाम हो। और उसके बाद बाहर निकल के आ जाते हैं। और बहुत सी वसीयतें थी कि मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जनाबे अबा सल्त से कुछ इरशाद फरमाई थी कि इसको मेरी शहादत के बाद मेरे शियों तक पहुंचा देना। और बहुत सी वसीयतें ऐसी थी, पैगामात ऐसे थे, इमामत के राज थे जो मौला इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को दिए गए। आज बहरहाल हम लोग की खुशकिस्मती है कि ये 2 शहादतें हम लोग को नसीब हो गई, बल्कि 3 शहादत। जनाब रसूल खुदा की भी शहादत हुई है, उसे वफात कह के टाला जाता है, वफात नहीं है। अगर तारीख उठाकर देखें तो जनाब रसूल खुदा को देखें, आखिरी मेहमान किसके घर पे थे, किस बीवी के घर पे मेहमान थे? कि आपको मिलता है कि जहर दिया गया, शहद के अंदर मिलाकर जहर दिया गया है, सिलो पॉइजन जो कहा जाता है, कि आपको जहर दिया गया है, शहादत हुई है। यानी कोई इमाम हम लोग में ऐसा नहीं है कि जो अपनी तभी मौत से मरा हो, सबकी शहादत हुई है। जनाब रसूल खुदा को भी जहर दिया गया है, उनको बाकायदा तौर से, यहाँ तक कि बाकायदा कोशिश की गई कि छुपाया जाए, और आज तक तारीख छुपा रही। बीबी मासूमा जिनका लक़ब मासूम है, उनकी भी शहादत हुई है। कि मिलता है कि सावा में जब पहुंची है, सावा में पहुंचने के बाद आपको वहाँ खाने के अंदर जहर दे दिया गया था, कि उसके बाद से आपकी जो है तबीयत न संभली। हर मासूम को जो जहर दिया गया, हर मासूम को अज़ियतें पहुंचाई गई हैं और जहर दिया गया है। कि यह है कि ये शहादत इसलिए है कि हमेशा ये जिंदा है और इनका नाम हमेशा रहती दुनिया तक बाकी है और बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। हम रहें या ना रहें, हम लोग की बहरहाल दुनिया इसी तरह चलती रहेगी, मासूमीन के लोग ज़ियारतों के लिए आते रहेंगे। तमन्ना है आप लोग से भी कभी अगर हम ज़ायरों को भी याद आ जाए तो हम लोग को भी इस बारगाह में आप लोग याद कर लिया करिएगा। मैं अपने बिरादर, अपने अजीज़ भाई मुसैयब साहब को मैक देता हूँ कि मौला के शान में कुछ पढ़ना चाहे मसाइब के फ़िक्रे, कि बहरहाल बड़ी ज़हमत की है इन्होंने, और मेरे बड़े भाई मुख्तार के साथ साथ हमारे चल रहे हैं कि इन्होंने हर जगह पे हम लोग की रहनुमाई की है, हर जगह पर ज़हमतें की है। खुदा इनकी ज़हमत को कबूल करे, परवरदिगार इनके इल्म में और इजाफा दे, परवरदिगार इनको सेहत और तंदुरुस्ती इनायत करे। खुदा से दुआ है कि इस दिन के सदक़े में परवरदिगार ये मेरे भाई कुमैल और मुख्तार, इन दोनों को कामयाबी दिए रहे कि इसी तरीके से ज़ाहिर हुसैन की ये खिदमत करते रहें। ये भी बहुत बड़ा शरफ़ है, हर किसी को नसीब नहीं होता है कि खुद ये मौला की अमानत है, कि मौला की अमानत को पहुंचाना उन तक, ये बहुत बड़ी वाक़ई ज़िम्मेदारी ये लोगों ने निभाई कि सबको छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर, हर चीज़ को छोड़कर जो है मौला की खिदमत में लगे हुए हैं। खुदावंद आलम हम लोग की सारे ज़ाहिरों की दुआएँ हैं, पूरे काफ़िले वालों की दुआएँ हैं, हमेशा दुआ है
कि मौला इन लोगों को हमेशा कामयाबी देता रहे और इसी तरह से हम लोग इन सब के साथ ज़ाहिर हुसैन इंशाअल्लाह बनते रहे। मैं तोहफा पेश कर रहा हूँ जनाब मौला इमाम इस्लाम का, आप सब मेरे साथ पूछा नहीं मिल सकता। लाशे पे मुजतबा के तीरों का साहिबा है, लाशे पे मुजतबा के तीरों का साहिबा है, लाशे पे मुजतबा के तीरों का साहिबा है। ज़हरा का दिल दुखाने, ज़हरा का दिल दुखाने मसरूफ हर कमा है, लाशे पे मुजतबा के तीरों का साहिबा है, लाशे पे मुजतबा के तीरों का साहिबा है। बढ़ती ही जा रही है ज़हरा की बेकरारी, बेचैन मुस्तफा है सुनी है खुल्द सारी, सीने पे मुर्तजा के, सीने पे मुर्तजा के हर तीर का निशान है, लाशे पे मुजतबा के तीरों का साहिबा है, लाशे पे मुजतबा के तीरों का साहिबा। शब्बीर की सदा है लोगों न तीर मारो, शब्बीर की सदा है लोगों न तीर मारो, ताबूत मुजतबा का ऐसे तो ना सवारो, ये वो हसन है जो के, ये वो हसन है जो के खालिक का राज़दां है, लाशे पे मुजतबा के तीरों का साहिबा है, लाशे पे मुजतबा के तीरों का साहिबा है। जो तीर बच गए हैं करबल में वो चलाना, जो तीर बच गए हैं करबल में वो चलाना, मैं जानता हूँ लोगों नहीं दूर वो ज़माना, भाई के बाद मेरा भाई करबल में इम्तिहान है, लाशे पे मुजतबा के तीरों का साहिबा है, लाशे पे मुजतबा के तीरों का साहिबा। लाशे हसन पे छुप के जिस ने तीर मारा, लाशे हसन पे छुप के जिस ने तीर मारा, महशर में ना मिलेगा उनको कोई सहारा, लो आज तुमको देता, लो आज तुमको देता शबीर ये ज़ुबान है, लाशे पे मुजतबा के तीरों का साहिबा है, लाशे पे मुजतबा के तीरों का साहिबा। ज़हरा का दिल दुखाने, ज़हरा का दिल दुखाने मसरूफ हर कमा है, लाशे पे मुजतबा के तीरों का साहिबा है, लाशे पे मुजतबा के तीरों का साहिबा।
محمد وآل محمد وعجل فرجهم.